Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the first part of the solutions to NCERT questions of the Electrochemistry chapter of Class 12th Chemistry, CBSE and ISC. In this video we will discuss exercise questions 14 to 18. So let's begin. 14th question is, how much electricity is required in coulomb for the oxidation of 1 mole of H2O to H2O? For the oxidation of 1 mole of H2O to H2O, H2O से O2 बनने में कितना लगेगा in coulomb electricity? So H2O will form H2 plus half O2, that is O2 minus will form half O2 plus 2 electrons. The quantity of electricity required equals to 2F, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसलिए choice of F will be required, which is 193,000 coulombs. लेकिन 1 mole of FeO to Fe2O3, 1 mole of FeO to Fe2O3, FeO plus half O2 will form Fe2O3, that is Fe2 plus will form Fe3 plus electron. तो यहाँ पे F is required 1F, एक electron 1F required, which is 96,500 coulombs. Next question, a solution of NiNO3 whole twice is electrolyzed between platinum electrodes using a current of 5 ampere for 20 minutes. What mass of Ni is deposited at the cathode? 5 एम्पियर करंट 20 मिनट तक लगाया गया अगर एक इलेक्ट्रोलाइट में, तो कितना Ni डिपॉजिट होगा एट द कैथोड? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इक्वल टू 5 एम्पियर फॉर 20 into 60 seconds, which is 6,000 coulombs. टोटल जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी इज 6,000 coulombs. Now Ni2 plus 2 electrons will form Ni, तो 2F इलेक्ट्रिसिटी जो है कूलम्स में है, जो चार्ज वो यूज़ हो रहा है. Now कितना है 96,500 फॉर 2 into 96,500 coulombs of charge deposited for 1 mole of Ni, which is 58.7 grams. 6,000 कूलम में कितना होगा? 58.7 into 6,000 upon 2 into 96,500, which is 1.825 grams of Ni. मतलब अगर हमारे पास 1 मोल हमें अगर डिपॉजिट करना है तो 58.7 ग्राम जो है 1 मोल ऑफ Ni इक्वल टू 58.7 ग्राम्स. अगर 2F जो रिक्वायर्ड है फेराडे में चार्ज वो पूरा सप्लाई करते हैं तो 58.7 ग्राम्स आता है, लेकिन हमने कितना सप्लाई किया? 6,000 कूलम्स. तो उसके रिस्पेक्ट में 58.7 इंटू 6,000 अपॉन 2 इंटू 96,500 करेंगे इक्वल टू 1.825 grams of Ni will be deposited. Next question, 3 electrolytic cells A, B and C containing solutions of zinc sulfate, silver nitrate and copper sulfate respectively are connected in series. A steady current of 1.5 ampere was passed through them until 45 grams of silver deposited at the cathode of cell B. How long did the current flow? What makes copper and zinc? What mass of copper and zinc were deposited? अगर 1.5 एम्पियर करंट पास होता है और उससे एक गिवन क्वांटिटी 45 ग्राम्स ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होता है, तो कितनी देर के लिए करंट पास हुआ था और कॉपर और जिंक कितने डिपॉजिट होंगे ये बताना है. पिछले क्वेश्चन की तरह ही है. गिवन करंट इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर, वेट इक्वल्स टू 1.5 ग्राम्स ऑफ सिल्वर, टाइम कितना है और गिवन है 108 which is mass and n equals to 1 being electron transfer. Using Faraday law we know W equals to Z into I into T or W equals to E upon NF into IT. यहाँ पे हमें T निकालना है 1.45 into 96,500 upon 1.5 into 108. वैल्यूज रख देंगे सारी equals to 863.73 seconds. Up now for copper, Wi equals to 1.45 grams of Ag equals to even equal to 108. W2 कितना होगा? So E2 यहाँ से निकालना है तो E2 निकाल लेंगे 31.75 जो है मास आके. एंड नाउ वी यूज Faraday's second law, which is W1 upon W2 equals to E1 upon E2. तो हमें W1 पता है 1.45, W2 निकालना है, E1 मालूम है 108, E2 पता है 31.75, W2 आ जाएगा 0.426 grams of copper.
सिमिलरली जिंक निकालना है तो अगेन W1 1.45 ग्राम्स है, E1 फॉर सिल्वर और E1 108, सो E2 कितना है 32.65 और W2 निकालना है। सो अगेन W2 निकालने के लिए सेम प्रोसेस रहेगा, 0.438 ग्राम्स ऑफ जिंक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल, Fe3 प्लस एक्वस एंड I माइनस एक्वस। रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, कैसे निकालेंगे? कांस्टेंट गिवन है हमको, E0 I2 हाफ I2 I माइनस इक्वल्स टू 0.541 पॉजिटिव, E0 CO2 प्लस CO इक्वल्स टू 0.34 वोल्ट्स, E0 हाफ Br2 Br इक्वल टू प्लस 1.09 वोल्ट्स and E0 silver Eg plus Eg is 0.8 volts and E0 Fe3 plus Fe2 plus is 0.77 volts, सब गिवन है। तो पहला रिएक्शन है Fe3 प्लस I माइनस। इस केस में क्या हो रहा है, Fe3 प्लस एक्वस प्लस I माइनस विल फॉर्म Fe2 प्लस एक्वस प्लस हाफ I2 गैसियस प्लस हाफ I2 गैसियस। सो नाउ दिस Pt I2 I माइनस एक्वस Fe3 प्लस एक्वस Fe2 प्लस एक्वस Pt में यूज़ किया, पीरियड यूज़ करिए उसमें, तो E0 चल इक्वल्स टू E0 Fe3 प्लस Fe2 प्लस माइनस E0 हाफ I2 I माइनस, दोनों की वैल्यूज रखेंगे 0.77 माइनस 0.54 जो क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल्स टू 0.3523 वोल्ट्स, तो पॉजिटिव है, इट इज फिजिबल। नेक्स्ट पार्ट, 2Ag प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड विल फॉर्म 2Ag सॉलिड प्लस CO2 प्लस एक्वस। इस केस में क्या होगा, CO2 प्लस एक्वस एक और Ag प्लस एक्वस और Ag, नाउ E0 सेल इक्वल्स टू E0 Ag माइनस E0 CO2 प्लस CO, दोनों वैल्यूज पता है 0.8 माइनस 0.34 विच इज 0.46 वोल्ट्स विच इज अगेन फिजिबल। नेक्स्ट Fe3 प्लस एक्वस प्लस Br माइनस एक्वस विल फॉर्म Fe2 प्लस एक्वस प्लस हाफ Br2 गैसियस। इसमें वैल्यूज रखेंगे दोनों की 0.77 माइनस 1.09, आंसर आ गया माइनस 0.32। अब क्योंकि नेगेटिव में आ गए वोल्ट्स इसलिए रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। देन अगेन नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट के लिए Ag सॉलिड प्लस Fe3 प्लस एक्वस विल फॉर्म Ag प्लस एक्वस प्लस Fe2 प्लस एक्वस। इस केस में 0.77 है और 0.8 है, दोनों वैल्यूज पता है हमको, रख दी, माइनस 0.03 वोल्ट्स आया, अगेन नेगेटिव, नॉट फिजिबल। हाफ Br2 प्लस Fe2 प्लस एक्वस विल फॉर्म Br माइनस एक्वस प्लस Fe3 प्लस एक्वस। इस केस में वैल्यूज Br के लिए 1.09 माइनस Fe के लिए 0.77, सॉल्व कर देंगे 0.32 वोल्ट्स, पॉजिटिव है अगेन, दैट इज फिजिबल। लास्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्ट्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रिडिक्ट करने हैं, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं। तो पहला देखते हैं, AgNO3 सॉलिड प्लस एक्वस विल फॉर्म Ag प्लस एक्वस प्लस NO3 एक्वस, AgNO3 ब्रेक्स इनटू Ag प्लस NO3 माइनस, ठीक है। तो H2O विल फॉर्म H प्लस एट OH माइनस, तो एट कैथोड क्या होगा, Ag प्लस आयंस हैव लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल देन H प्लस आयंस, हेंस Ag प्लस आयंस will deposit at Ag as Ag in preference to H plus ions। कैसे, Ag plus aqueous will gain electron to form Ag solid। At anode क्या होगा, as Ag anode is attacked by NO3 minus ions, Ag of the anode will dissolve in form of Ag plus ions in the solution। anode पे dissolve हो जाएगा, Ag solid will lose electron to form Ag plus aqueous। This is first case। second part इसका, Ag plus at, this is for anode। now second part at cathode, Ag plus ions, second part में क्वेश्चन देखें, an aqueous solution of AgNO3 is platinum electrodes। दूसरे केस में, पहले केस में सिल्वर इलेक्ट्रोड, दूसरे केस में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे तो Ag plus ions have lower discharge potential than H plus ions, hence Ag plus ions will be deposited at Ag in reference to H plus ion at cathode। और एट एनोड क्या होगा, एट एनोड एज एनोड इज नॉट अटैक्ड आउट ऑफ OH माइनस एंड NO3 माइनस आयंस, नॉट अटैकेबल
out of OH minus and NO3 minus ions, OH minus ions have lower discharge potential, hence OH minus will discharge. NO3 और OH में से OH का discharge potential कम है, इसलिए OH will discharge in preference to NO ions, which then decompose to give O2. अब OH will decompose to form O2. OH minus aqueous will form OH plus electron. 4OH will form 2 water plus O2. यहाँ से O2 निकल जाएगा. Next part, a dilute solution of H2SO4 with platinum electrodes. Dilute solution of H2SO4 with platinum electrodes. H2SO4 aqueous will form 2H plus aqueous plus SO4 2 minus aqueous. H2O will form H plus OH minus. Cathode पे क्या होगा? H plus will gain electron to form H2. H2 H plus H will form H plus will gain electron to form H, and H plus H will form H2 gaseous at cathode. Anode पे क्या होगा? OH minus will form OH and lose an electron. 4OH plus will form twice of water plus O2 gaseous. Again, H2 gas is liberated at cathode and OH gas at anode. कैथोड से H2 गैस निकलेगी और एनोड से OH गैस निकलेगी. लास्ट पार्ट इसका क्या है? एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ CuCl2 विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स. CuCl2 का एक्वस सोल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं. इस केस में क्या होगा? Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2Cl माइनस एक्वस बनेगा. H2O विल फॉर्म H प्लस एंड OH माइनस. तो कैथोड पे Cu2 प्लस आयन विल रिड्यूस इन प्रेफरेंस टू H प्लस आयंस एंड कॉपर विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड. Cu2 प्लस जो है वो रिड्यूस होगा तो कॉपर डिपॉजिट होगा एट कैथोड. Cu2 प्लस विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कॉपर. एट एनोड Cl ions will be discharged in preference to OH minus ions which remain in the solution. तो डिस्चार्ज क्या होगा? Cl minus with respect to OH. तो Cl minus will form Cl and lose electron. Cl and Cl will combine to form Cl2 gaseous. Thus, copper will be deposited at cathode and Cl2 chlorine gas will be liberated at anode in this case. दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उनके काम आ सके. मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नई वीडियो में बहुत जल्द. थैंक यू वेरी मच.